Good evening, ladies and gentlemen. Here's wishing you all a very Merry Christmas and a wonderful New Year. This evening, we welcome our Lokpriya and prolific playback singers, Alka Yagnik and Sri Babul Supriyo. Both of them will be in a jovial conversation with each other and also hum their way into our hearts. Alka Yagnik, the queen of melody of the 90s, has sung more than 20,000 songs in different Indian languages. She is ranked #1 on the YouTube music charts with 300 million views. She has won 2 National Film Awards, 7 Filmfare Awards for being the best playback singer, and many other international accolades. Sri Babul Supriyo is a passionate, multi-talented, eloquent, and a popular playback singer and politician. He calls music his better half. He is also a noted honorable minister in charge information technology and electronics tourism in the government of West Bengal. Pujo Esche, Joy Ma Durga, a modern song, became a big hit in this year's Durga Puja sung by him. Both Babulji and Alka have their roots in Bengal and are very fond of our city of joy. They have sung popular duets like Kaho Na Pyar Hai and Hum Tum and many, many more. Over to our power-packed duo, Sri Babul Supriyo and Alka Yagnik, for a lovely evening. Thank you. Good evening, ladies, and the one gentleman that I see here, study group, ladies who are all accomplished personalities, individuals in their respective fields, ladies who study a lot, which is a quite a scary thing, because you have to be very careful about what you're saying. And then you have Alka Yagnik sitting by your side, who sends you like maybe 1200, 1400 word instructions in terms of what exactly it is, how Suchita ji has been her cousin, I mean she is her cousin, and how because of that, you know, I cannot speak about the holy cow or commit any sin if you break cousin into 2 halves. So yeah, I got the joke a little later, but that's okay. All PJs may not be understood immediately. So I have instructions, I have questions that Alka ji has planted. She expects me to question all of them, answer all of them. Alka Yagnik is AY. She told me to say that stands for always young. That's what she said. Though I told her that for ladies and all of you here, the last age step that you reach is 25 years. After that, as Bill Clinton had said, it's only anniversaries of your 25th birthday. So your last birthday is 25 anyways. So thank you so much. And I don't need to hand over my mic to Alka ji. She has one. And she will start speaking. आपका समय शुरू होता है अब. आप बस कंप्यूटर जी मत बनिए, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बातचीत करें. अच्छा, बोलने शुरू तो करूं? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बोलिए. Okay, hi friends, very good evening to all of you. It's a pleasure to be once more on the platform in front of all you beautiful ladies. And I think Babul should thank me because I've given him a chance to be in a room full of such beautiful, smart women. I told you that cousin means no sin, so I have not even looked here and there. I'm just keeping No, a straight I'm sure eye. you can look. There's no Yeah. harm in looking. Okay. Well, it's I'd like to thank Babul for coming today, and it was a request which I was not really sure whether he would comply with, but he did. And for the first time in his life ever, he reached on time or before time. Okay. उर्दू में बोलते हैं कि ला तसबुद्रा, उर्दू नहीं है ये, एक्चुअली अरबी है. ला तसबुद्रा वो वाला हो. It's a line which means that time is God, don't waste time. So
So don't go there. Okay. Carry on with your next sentence. Okay. So I'm wasting time, is it? Okay. As you all must be knowing, I am very much from Kolkata, born and brought up in Kolkata. And although I live in Bombay now for many years, my heart is still here, and it always will be here. I'm looking for the slightest opportunity to come to Kolkata. Anything. I said, yes, of course I'm going. Because, needless to say, it's not only it's not only the Jhalmuri and the Frankie rolls and the Durga Puja and Park Street and Mishti Doi and all that. It goes much beyond that. There's something in the air here. Moment I land here, it's like I feel I'm home. And being away from home for so many years, I feel like a fish out of water. And every time coming back here is a great, great feeling. And I think Babul, he is also, you have grown up here, isn't it? I'm still not grown up, but yes, I am born here. I know she has a lot of stuff because she's senior to me. So let me accept that, I know that I'll accept all those, what should I say, brickbats. So let me say that I'm not a grown up, so that way it makes things a little easier. Acha, what we are going to do is there's so much to say, and yes, she has planted a lot of questions. Like she has asked me what I need to ask her. I did not say that. Whatever. No, that's not true. उनकी क्या क्या खूबी है, क्या नहीं है, उसके बारे में मैं उनको एक छोटा क्यू दूंगा, and then she'll do a विस्तार. किसकी क्या क्या खूबी है? आपकी कजिन है, आपने इनवाइट किया तो आपने जिस तरीके से मेरी भाभी हैं, हाँ. और हमारी बचपन से हमारा बॉन्ड है, और उन्होंने बहुत ईगरली और बहुत एंथुजियाज्म के साथ ये सब कुछ सेटअप किया है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुली डन अप सिनेरियो. So anyways, I will first ask you one question. I think it is important that... You're going to ask me a question? Yes, okay, of course. Okay, you answer first. Tell me. Ladies first. I cannot break the protocol. So, आप जो है पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई थी कलकत्ता में? आपने संगीत को क्यों चुना? आपकी ज़िंदगी में आपकी मम्मी डैडी का क्या रोल रहा है? और ये सारी बातें जो हम कई बार कई मैगज़ीन्स में हम पढ़े हैं, हम बाय हार्ट जानते हैं, गूगल में भी मिलती है, उसे आप दोबारा दोहराएं क्योंकि आप इसमें आए हैं. एंड आई एम श्योर आपका कज़िन जो है फ्लाइट टिकट कज़िन नहीं, आपकी हाँ नहीं, मैं हिंदी में जानबूझ के गलती करता हूँ ताकि मैं बंगाली हूँ ये साबित हो. व्हाई शुड आई लीव माय बंगाली आना? सी इन एनी केस बंगालीज को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है. बंगाली जो है उनका अंधविश्वास है, उनको ऐसा लगता है कि वो हिंदी बोलते हैं बट एक्चुअली वो बंगला ही बोलते हैं. चलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप वहीं से शुरू करिए जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी. नो कमेंट्स. नहीं, आप बताइए मम्मी डैडी का आपका क्या उनका वो रहा? गाने आप तो सब जानते हैं. मैं एक ही लाइन बोलूँगी, मैं जो कुछ भी थोड़ी बहुत जो कुछ भी हूँ अपनी लाइफ में वो मेरे पेरेंट्स की वजह से है. मम्मी एंड पापा ऑल्सो हु वाज अ साइलेंट सपोर्टर. सो आई एम वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ देम. एंड इनफैक्ट मुझे लगता है इन लोगों को काफ़ी कुछ पता है मेरी लाइफ के बारे में. व्हाट अबाउट यू टेलिंग अस अबाउट योर journey from field of music and then flowing into... नहीं, वो नहीं, सिंपल सा फ़र्क है. आप हिट के लिए आप गाते हैं, अब मैं वो हिट से मैं हित में आ गया हूँ. हित और हिट की फ़र्क है. हाँ, हित में काम करता हूँ मैं लोगों के लिए, आप हिट के लिए काम करते हैं. आप थोड़ा सा आपका ये अपनी मम्मी डैडी की बारे में जो है आप एक और भी हिट होता है, पता है ना? No, I'll tell you one thing. On a serious note, I have really known अलका जी for a very long time. 92 में जब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नौकरी छोड़ के भाग के बॉम्बे गया था, बाद में मेरी मम्मी आई थी 15 दिन के बाद मुझे कन्विंस करने के लिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नौकरी छोड़ के, किसी को जानते नहीं हो कैसे. तो उस वक्त सनी स्टूडियो में एक रिकॉर्डिंग में नदीम श्रवण की हम कैसे भी करके अंदर घुस गए थे, मम्मी भी थी. जब गाना गा के अलका जी बाहर आई थी तब मेरी मम्मी ने एक्चुअली मेरे डायरी में इनसे ऑटोग्राफ लिया था, और तब मुझे पता था कि ये अलका याग्निक कपूर है, बिकॉज अलका याग्निक के नाम से ही जानते हैं. ये मेरी मम्मी ने 1992 में, और वो डायरी अभी भी मेरे पास रखा हुआ है. हाँ, बट ही वाज डेटिंग हिम ना ऑलरेडी कपूर. नो, दैट केम लेटर, राइट? हाँ, बट ठीक है, 92 में आपने अलका याग्निक कपूर लिखा था, मेरे पास जी उसका नहीं है. नहीं लिखा था? या एक्चुअली
Don't, that's why I said don't term me as a politician. मैं स्टेज पे झूठ नहीं बोलता हूँ. I leave all of that at home. Then I cross a river. मैं exactly गंगा किनारे हावड़ा में रहता हूँ. I can see the entire. So मैं गंगा क्रॉस करके उधर जाता हूँ, जो भी चीज़ें हैं इस तरफ छोड़ के, और जब मैं सुबह छोड़ता हूँ उधर से इधर आता हूँ, सारा झूठ जो है उधर छोड़ के मैं इस तरफ पहुँचता हूँ. आप प्लीज़ आपके ऑन अ सीरियस नोट, सिंस आई नो यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई नो दी how the time when you lost your father, and how your mother, as you said earlier, she was really a, if I use the word that your cousin used, she was a tyrant actually. Very गुस्से वाला जो है आंटी थी. इनका भाई का नाम बंटी है, और साथ में आंटी थी. She was the one in between. I don't think they're interested in knowing. No, all I'm this. telling you, because you said that your mom was ambitious and really wanted you to get into music. Yeah, Mummy was Our Mummy father was was a a classical calming, singer. yeah. She was a classical singer, and she was very ambitious for me. I was not ambitious. I was lazy and laid back and would have preferred to play. But she made sure that I should learn music, I should do रियाज. और बहुत रो रो के मैं रियाज करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. आई जस्ट फेल्ट दैट व्हाई शी नॉट लेटिंग मी जस्ट प्ले अराउंड एंड व्हाई डू आई हैव टू. पर उसकी अहमियत आज समझ में आती है कि ज़िंदगी का कुछ, if you have to make something of yourself, and if God has given you some talent, you must make the most of it. And in this case, Mummy was instrumental in making me do that. And मतलब बेसिकली जो कहना चाहती है कि समझ लीजिए रिकॉर्डिंग है तो फादर और मदर में ये फ़र्क ये था कि मम्मी जो थी, अगर फर्स्ट फ्लोर में रहती थी उस वक्त, मुझे याद है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिल्डिंग जो कॉर्नर पे थी, इन बॉम्बे वाला के कॉर्नर में, जहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर में रहते थे. अलकनंदा. हाँ, तो फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पे रहती थी तो मदर ये बोलती थी कि अलका कम डाउन, रिकॉर्डिंग है, जाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं जाओगे. एंड फादर यूज्ड टू से कि काम डाउन, अगर वो गाना नहीं चाहती है तो आज मत लेके जाओ. You get it, na? So in a short line, if I define the difference between the father and the mother, I think I'm almost correct. No, it depends from person to person. But आपका सबका father, अलग तरीका होता है. I think I would request you all to ask what you really want to know from Babul and from me. Yeah. इनका पहला गाना कौन सा था और कैसे वो गाना बनी थी, और पहला फिल्म फेयर अवार्ड इनको कब मिला था. आप लोग इनको मौका मत दीजिए ज़्यादा बोलने का. आप लोग बोलिए कुछ, ताकि नहीं, पीपल वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू एज वेल. व्हाई शुड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. तो आप जो चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पूछ रहा हूँ, जैसे आपने एक साल ऐसा था, ऐसा एक साल था जब मुझे याद है आपको फिल्म फेयर में 5 नॉमिनेशंस आपको ही मिला था. एंड आप मुझे कहा कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन ये भी सच है कि हम तुम में हमारा गाना डुएट था, बट इन्होंने ये इंश्योर किया कि ग्लोरी और लाइमलाइट इनके ऊपर रहे, उसलिए बेस्ट फीमेल सिंगर के अवार्ड उनको मिला, और डुएट गाना मैंने गाया, मुझे नहीं मिला. एंड आई एम कॉल्ड द पॉलिटिशियन हियर. सो अभी इसका विस्तार से अलका जी आपको बताएंगे. ये सारे और जब से ये गाना रिकॉर्ड किया है, जब से ये अवार्ड मुझे मिला, आई हैव टू हियर दिस एवरी टाइम फ्रॉम हिम दैट they gave you the award but they didn't give me the award. What is the meaning of this? You have played politics. I said no, I have not. But आपको ये बात खलती है, उसके लिए आपसे मैं आई एम सॉरी फॉर दैट. बट So I really have been introduced to Rabindra Sangeet being a non-Bengali very late in my life, and you guys have done some wonders with Rabindra Sangeet. I would love to know how Alka ji has been associated with it in her early years. Being in Kolkata, was that a default that you did learn Rabindra Sangeet? And I'll follow it up with a request. Of course, your own songs are there, but Purano she diner kotha ekটু jodi apnara gete paren, whoever. দেখুন, আমি আপনাকে একটা জিনিস বলছি যে अलका जी বারবার আমাকে বলছেন তুমি বলো, বাট রিয়েলি आई वांटेड इट टू बी 50-50 और मे बी 55-45. बट जो क्वेश्चन उन्होंने किया है, हाउ डिड यू गेट इनटू टैगोर सॉन्ग्स, वो मैं बाद में बताऊंगा. बट क्या बचपन में आपका टैगोर सॉन्ग्स के साथ कोई रिलेशनशिप था? आई नो. देखिए, जो भी कलकत्ता में पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके ऊपर रविंद्र संगीत का असर पड़ता ही है. एंड
हमारे स्कूल में जो भी कल्चरल फंक्शंस होते थे, आई थिंक लॉट ऑफ यू आर फ्रॉम मॉडर्न हाई हियर. Yes, yes, me too. So I'm from Modern High as well. So जो भी हमारे cultural programs होते थे उसमें I used to be participating. Then we used to have a lot of these Tagore dramas, Tashe Desh, and you know, and हर उसमें मैं participate करती थी. तो सिर्फ खून में ही नहीं होता है असर इन सब गानों का, मिट्टी में भी असर होता है. तो since I was not a Bengali by birth, but I think at heart I'm more a Bengali than anything else. So I grew up with all this. और सुनती आई हूँ और इसका जो बहुत ही so soulful कि इसका असर बहुत ज़्यादा होता था मुझे बचपन से. और फिर लेकिन मैंने कभी अपने लाइफ में टैगोर का कोई एल्बम नहीं किया था. आई हैव नॉट डन एनी एल्बम. एंड मुझे ऐसा लगा था, मैं यहाँ पे आई जस्ट वांट टू ऐड कि एक टाइम था जहाँ पे सी इफ यू डोंट कीप योर कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग ना, then what happens is there are too many nice reels that happen on Instagram and Facebook. आप ज़रा देखिए, already lot of people have gone into that. reels देख रहे हैं Facebook में. हाँ, जैसे मधुबा भी is right now is checking reels. हाँ, तो I can see that from here. So real life और real life में फ़र्क होता है. तो they want to know your real life. तो टैगोर सॉन्ग्स में जो है एक टाइम हुआ करता था जब यू नो सिंगिंग वॉज वेरी डिफाइंड. लोग अपने आप को सिंगर बोलते थे, बाथरूम सिंगर बोलते थे. एंड आपको सिंगर बनने के लिए सुर में गाना जो है वो एक नेसेसिटी, एक इंडिस्पेंसिबिलिटी था. बट जब से कंप्यूटर में आप ट्यूनिंग कर, इस एब्सोल्युटली साइंस, सो जब से कंप्यूटर में आप लोगों की आवाज़ ट्यून कर सकते हैं तो सिंगरों की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है वो कम हो चुकी है. अगर रोबोट सारा काम कर दें और हार्ट ऑपरेशंस वगैरह कर दें जैसे आजकल हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स के सब्स्टिट्यूट निकल जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट. सो अलका जी की आवाज़ में जिसे हम जो हम बचपन से सुनते आए, एक सिंगर की जो इनहेरेंट क्वालिटी, स्वीटनेस, सारी चीज़ें होनी चाहिए. यू नो इफ़ यू कैरी ऑन द लेगेसी फ्रॉम लता मंगेशकर, आशा भोसले एंड ऑल ऑफ दैट, देन शी हैड एवरीथिंग ऑफ दैट इन हर जनरेशन. She, Anuradha Paudwal, Kavita Krishnamurti, but she had that little bit of Bangaliana in that, which suits Rabindra Sangeet. So I felt that you know she is the right person to venture into Hindi गाने जो है वो तो हो ही रहे हैं, तो why not venture into Rabindra Sangeet? So I kind of convinced, and later on after sorry for the interruption. I was going to thank you, but you didn't give me that opportunity. थैंक यू करने की जरूरत नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि पहले उनको कन्विंस किया, फिर उनके बाद बड़ा वो होता है, फिर सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, फिर मम्मी को पूछना, ये करना, ये सब चलता रहता है. फिर से देन आई हैड टू गो थ्रू द सेकंड राउंड ऑफ कन्विंसिंग. थर्ड में मुझे फोर्स करना पड़ा कि आप करके तो देखिए, अरेंजमेंट मैं करूँगा, बॉम्बे में रिकॉर्ड करूँगा, सारा उसका जो है रविंद्र संगीत का जो नोटेशन है उसको लेके छेड़छाड़ नहीं करना चाहते. विल बी प्योरिटन व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग द सॉन्ग्स, बट अरेंजमेंट, उसका साउंड कैसे होगा, साउंड जो कंटेम्प्रेरी रखेंगे. तो उसके बाद वो एल्बम रिकॉर्ड हुआ. एंड अगर आप यूट्यूब में जाके देखेंगे तो सब गाने जो हम गाए हैं वो इनके भी सोलोज हैं, मेरे भी है, और डुएट भी है 4 गाने, वो काफ़ी पॉपुलर हुए. तो आप अगर उसमें से एक गाना, एल्बम वाज कॉल्ड मोने रोबे. आई डोंट नो इफ यू, आई एम श्योर यू मस्ट हैव, बिकॉज़ इट रियली, so he coaxed me into doing it, and that was the first time I did a proper album of Tagore songs. And गाइए ना एक तो, क्या एक तो गाना गाइए, एक तो गाना गाइए, एक तो गाना गाइए, बांग्ला जैसे बोलते हैं, एक तो गाना तो गाइए, मोने रबी गाइए. आप गाइए. अच्छा मैं शुरू करता हूँ. মনে রবে কি না রবে আমারে, মনে রবে কি না রবে আমারে, সে আমার মনে নাই, লিরিক্স মনে নাই. মনে রবে কি না রবে আমারে, সে আমার মনে নাই, মনে রবে কি না রবে আমারে, ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে, অকারণে গান গাই, মনে রবে কি না রবে আমারে, সে আমার
बहुत सारे गाने हैं, आप यूट्यूब में जाके So, one question for Babul is that how do you divide your time between, because I know you're performing also, and politics. So how does it work? Number one. And for Alka, and both of you actually, both of you travel and do your shows all over the country. So one should, I think all of us would love to hear some of the interesting stories, anecdotes from those shows and some of the funny moments, some of the, whatever happened. देखिए कितना अच्छा सवाल है, हम पूरे शो इस पे कर सकते हैं. हाँ. थैंक यू मधु जी, दैट वाज रियली अ अब आप नाइस बताइए, क्वेश्चन. अब आप देखिए बताइए कैसे करते हैं. I have I've always believed from my school days that time management is a very important thing. I only do what I love, whether it is playing with my dogs. मेरी मम्मी 2 साल पहले कोविड में चली गई. इट्स irreparable loss. I have not recovered from it. I will never, I think. But मेरा एक बर्ड पार्क बना है, उसमें तरह तरह की बर्ड्स है, मकाओ से लेकर एवरीथिंग, सब कुछ है. So whether it's spending time with them, bringing to my room, playing with my daughter, keeping her up, teaching her all the mischiefs, all the badmashis which irritates her mom, ensuring that she knows that those are only things that she can do inside the room. So morning when I leave for office, it's a written thing, एकदम announced thing है कि for the entire period my wife and daughter will have to be in the room. They cannot leave outside till the time I leave. I have made and when it comes to if you do what you love, there is enough time. 24 hours में आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे. और मल्टीटास्किंग में मैं गार्डनिंग भी करता हूँ, मैं कुकिंग भी करता हूँ, रात को थोड़ा सा 2-3 बजे सोता हूँ तो थोड़ा रियाज भी उस टाइम पे मैं करता हूँ. तो I think that without meaning any kind of misogyny, I think that I love the housewife approach. I used to say earlier, अभी सोशल मीडिया के आप ऐसा कुछ बोले तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, लोग बोलते हैं ऐसा कमेंट किया. बट आई रियली ऑलवेज से दैट आई एम कंप्लीट हाउसवाइफ मटेरियल. आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. सो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि आप जो चीज़ को जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है. लोग तो जिस चीज़ से प्यार करते हैं वो लेजिटिमेट के बाहर अफेयर्स भी कर लेते हैं. तो मैं दिस इज़ ओनली बिकॉज इट इज़ अमंग्स लेडीज़ ना, इसको दरवाजे के बाहर नहीं जाना चाहिए. तो जितना है समय उसके बाद भी देखिए कम से कम 2 घंटा तो होना चाहिए आपके पास एक्स्ट्रा, नहीं तो वो तो हो नहीं सकता है. तो आई एम नॉट इट्स नॉट दैट आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो मैं किताबों में पढ़ा हूँ वही बोल रहा हूँ. सो पॉलिटिक्स में भी आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल. सी जब मैं एक बड़ा अजीब सा घटना घटी थी, फ्लाइट में मैं बैठा था, मेरे पास आके स्वामी रामदेव जी बैठे, उनका सेक्रेटरी ने उनसे मेरे से मुलाकात करवा दिया. हम लोग बांग्ला में पिकनिक को चोड़ुई भाती बोलते हैं एंड ही इज़ नोन फॉर कपाल भाती. सो आई सेड कि सर आप कपाल भाती के लिए फेमस है और बंगाली चोड़ुई भाती के लिए बहुत फेमस है. तो ही गॉट अ लिटिल कन्फ्यूज, बट बड़े हंसमुख बाबा है. तो बातचीत हो रही थी, उनके हाथ में एक पेज था, उन्होंने वो पढ़ रहे थे. राजनाथ सिंह जी को फ़ोन, मुझे समझ में आ रहा था कि शी वॉज रिकमेंडिंग सम पीपल बिकॉज बीजेपी को 2014 में पूरे देश में बहुत सारे कैंडिडेट्स देना था. तो ऐसे बातचीत करते करते बोला आप बंगाल में जाते हो? ऐसे कहाँ जाता हूँ. तो वहाँ पे क्या होगा, बीजेपी का क्या चांस लगता है, ये सब पूछा मुझे. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग पॉलिटिकल, आई एम टॉकिंग फैक्ट. तो मैं बोला एज ऑफ नाउ ऐसा तो कुछ बहुत कुछ है, ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ. तो ही सेड कि नहीं हमें मालूम है बंगाल में कुछ नहीं हो सकता है, हम बीजेपी का वहाँ पे लेफ्ट और तृणमूल बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग बंगाल से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहे. तो मुझे ऐसा लगा था कि उस मोमेंट में कुछ है, समथिंग देयर इन दैट मोमेंट, तो समथिंग इज़ चैलेंजिंग मी. तो मैंने जब बहुत देर तक वो बोलते रहे ऐसा कि नहीं हो गया, मैं बोला एक काम करिए, आप वो जो लिस्ट आपके हाथ में है उसमें मेरा नाम लिख लीजिए, तो एक सीट भी अगर बंगाल से हुआ मैं आपको जीत के दूंगा. तो बोला ऐसे कैसे, क्या क्या बात कर रहे हो. तो उनके सिद्धार्थ जो सेक्रेटरी है, मैं बोला आप नंबर लिख लीजिए, एक सीट अगर आपको कभी लगे तो आप मुझे फ़ोन करिएगा, एक सीट भी होगा तो मैं आपको जीत के दूंगा. तो उसके 10 दिन बाद फ़ोन आया कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वोट के लिए आपको यू हैव टू डू कैंपेन, आपके पास कुछ NGO कुछ सपोर्ट होना चाहिए. मैं बोला एक पैसा नहीं खर्चा कर सकता हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में गुडविल करके एक चीज़ रहता है जिसका कोई टैंजिबल वैल्यू नहीं होता है, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें एक वैल्यू भी लिखा रहता है. तो मैं वो लाऊंगा, बाकी पूरा पैसा फाइनेंस जो है आप लोगों की करना पड़ेगा. तो देन
थोड़ा सा बाकी उनके जो ऑफिस के लोग थे थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया, नहीं आपका कोई एनजीओ कोई क्लब नहीं है, कोई नहीं, कैसे लड़ेंगे। फिर लेकिन उसके 10 दिन के बाद राजनाथ जी का फ़ोन आया कि मुझे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा, तो आपको टिकट दे रहे हैं हम, श्री रामपुर कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, डॉन बॉस्को में पढ़ा हूँ, आप वहीं से लड़िए। अब वो हो गया तो बीच में मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो जैसे बापी दा जो है श्री रामपुर से लड़ने वाले थे, बापी लाहिरी जी बहुत करीब थे, हमारे अलका जी के भी बहुत करीब थे, उनके घर पे जाना। ही वॉज दी एडिसिव फॉर बंगालीज एंड सिंगर्स इन बॉम्बे। उनके बर्थडे में, सरस्वती पूजा में हम सब जाते थे। तो वहाँ पे फिर बपीदा की मिसेस जो हमारे बोदी जो है, उनका फ़ोन आया कि बाबुल দুটোই সিট বাকি আছে, একটা শ্রীরামপুর একটা আসানসোল। আসানসোল থেকে তো দাদা একদম লড়তে পারবে না, অনেক দূর, আর ওরে বাবা ওখানে সব গুন্ডা বদমাইশ, গুলি চলে, ইয়ে চলে, ওসব দাদা একদম পারবে না। দেন দাদা কেম অন দ্য লাইন কি বাবুল শ্রীরামপুর তোমার হোম টাউন, তুমি তো অন্য জায়গা থেকে তুমি লড়তে পারবে না, তাহলে একটা কাজ করি এবছর আমি ছেড়েই দিই, আর এবার আর লড়া হবে না, কারণ আমি আসানসোল থেকে পারবো না। তো আমার মনে হলো যে আমি তো আগেই বলে দিয়েছি, আই হ্যাভ অলরেডি সেড দ্যাট আই উইল স্কোর আ সেঞ্চুরি, so if that is true then let me score from a away ground instead of doing it in home ground. So I said नहीं कोई बात नहीं दादा, आप श्रीरामपुर लड़िए, I will fight from Asansol. So it so happened that I was the only one to win, and so politics में मैं बड़ा सिंपल रखता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गानों का रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे आप लोगों को खुश करके जाना है, एंड इट्स अ प्रीपेड। कोई भी शो में आप टिकट खरीदते हैं तब आप शो में घुसते हैं, तो इट्स अ प्रीपेड थिंग। पॉलिटिक्स में भी वही है, प्रीपेड है। आप पहले वोट दे के किसी को चुनते हैं, उसके बाद वो काम करता है कि नहीं वो आपको देखना है। जैसे म्यूजिकल शो में क्या अलका जी का शो अच्छा हुआ नहीं हुआ, वो टिकट खरीदने के बाद, शो देखने के बाद आपको पता चलता है। तो आई केप्ट इट वेरी सिंपल कि मुझे रिक्वेस्ट आएंगे लोगों के, यहाँ पे म्यूजिकल रिक्वेस्ट आते हैं, वहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि हिट, और हम जनहित के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगे, हम वो काम करेंगे। तो आई थिंक दैट कभी कभी माइंड में अगर आप उसे सिंपल सोचे तो बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो आप जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग विच केप्ट मी इन पॉलिटिक्स। आई डोंट लाइक द वर्ड पॉलिटिशियन, आई डोंट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स। अगर मैं अपनी मन की बात कह सकूँ तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग सम म्यूजिक इन पॉलिटिक्स एंड वुड लव टू love to leave this field someday with a white kurta on, without having anyone trying to malign that. That's my only goal in life. That's what it is. तो ये पॉलिटिक्स के बारे में मेरा आंसर है। तो आप लोगों में से जो कुछ अगर अच्छा कुछ करना चाहते हैं, मेडिकल यूनिट करना चाहते हैं, कुछ ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहते हैं, मेडिसिन का, सबके पास बहुत सारे मेडिसिन जो है यूज़ नहीं होता है। एमॉक्सिलिन आपको 10 दिया है, 20 आपने ख़रीद लिया, आपका खांसी ठीक हो गई, 12 बज गया। तो ऐसे आप मेडिसिन डोनेट करना चाहें तो आप मुझे अगर बताएंगे तो बालीगंज में ऐसे बहुत गरीब लोग हैं जहाँ पे हम ये चीज़ डोनेट कर सकते हैं। तो सुचिता जी अगर इफ़ यू कैन ड्राइव समथिंग लाइक दैट, आई वुड लव टू डू इट समवेयर लाइक दैट। तो अभी अलका जी अपने, थैंक यू सो मच। अलका जी अभी आप ये बताइए, अगर मैंने बहुत बड़ी कहानी बता दी ना, तो अभी सवाल था ऐसा। नहीं, आपकी कहानी इंटरेस्टिंग है, मेरी कहानी तो सब जानते हैं। ये एक हाउ यू गॉट इनटू दिस होल थिंग एंड मैं ज़्यादा सोचते कि यू जस्ट डू योर वर्क, गो होम, यू नो। गाड़ी में माई डॉटर स्टेज इन बॉम्बे, द एल्डर वन इज़ 24 एंड द यंगर वन इज़ 5. So the thing is that I spend time between the two. The elder one is working for Pritham in Bombay. He's part of the group, मतलब पूरा उनके कोर टीम का मेंबर है. So कभी फ़ोन पे बात अगर होती तो हियर बिहाइंड हिम बहुत सी चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही हैं, बीच में कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है. तो आई सेड वेयर आर यू? सर आई एम एट माई हाउस. तो आई सेड ये सब क्या है? सो मैं मुझे इतना मिनिस्टर बन गए अब तो आप ये चिड़िया और कुत्तों बोल नहीं, दिस इज़ माई अनवाइंडिंग एंड माई रिलैक्सेशन. So I feel that for any person to achieve something in life, you have to be a little bit of a wacko, which he is. मगर ऐसे लोग ही कुछ करते हैं लाइफ में, जो थोड़े से यहाँ से खिसके हुए होते हैं ना, वही कुछ करते हैं. I mean it as a compliment, please. I'm completely taking it as a compliment. I have no choice. Do I have a choice? I'm on stage, someone is calling me a wacko. What do I do?
आई कैन ओनली से दैट आई कैरी माई जो साइज़ का स्क्रू है उसी साइज़ का एक रेंज मैं कैरी करता हूँ. जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं टाइट कर लेता हूँ. दैट्स इतना मैं कह सकता हूँ. एंड आई थिंक दैट आप लोग के लिए तो खैर ये बहुत प्रीमेच्योर एक एडवाइस है. आप लोग तो 50 तक अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो मैं पहले ही कहा था इट्स अ वेरी प्रीमेच्योर एडवाइस. बट आई थिंक आफ्टर यू रीच 50 और यू क्लोज टू 45, आपकी ज़िंदगी से जो अननेसेसरी लोग हैं उन्हें धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाना बहुत ज़रूरी है. पीपल यू नो यू शुड हैव 100 फ्रेंड्स. सबसे कैसे हैं क्या है सब है डिनर, लेकिन एक छोटा सा 5-6 आदमी का दोस्तों का ग्रुप होना चाहिए जिनके साथ आपका इंटरेक्शन हार्ट टू हार्ट हो सकते हैं. बाकी अननेसेसरी लोगों को आप ज़िंदगी से अगर हटा दें, आई थिंक यू विल हैव इनफ टाइम इन द वर्ल्ड टू यू नो टू फुलफिल टू हैव अ वेरी फुल लाइफ. आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. कोई बहुत ज़्यादा अगर आपके वो कर रहा है तो मैं तो फ़ोन पे ब्लॉक कर देता हूँ. वेरी सिंपल. बहुत लोग करते हैं. आई जस्ट ब्लॉक बिकॉज आई थिंक दैट हमारे पास टाइम बहुत कम है और कौन से टाइम पे कौन सा दिया बुझ जाएगी आफ्टर कोरोना रियली नो वन नोस. दिया मेरे लिए जाएगी भाई, आपके लिए जाता होगा. आपके लिए कैसे जाएगी हो गया? मेरे को दिया. अच्छा दिया इज अ फीमेल नेम तो दिया क्यों नहीं जाएगी? जाएगा. पुल्लिंग होता है वो, नहीं स्त्रीलिंग नहीं लॉजिकल होता है. नहीं लॉजिक की बात करिए ना. दिया इज अ फीमेल नेम. आप किसी लड़के को दिया देखा में कभी भी दिया? फीमेल नेम, बट दिया हाँ. दिया पुल्लिंग होता है. हिंदी नहीं, दिया हिंदी बुझ जाए. संस्कृत हिंदी हमारे मॉडर्न हाई स्कूल में सब पढ़ाया है. हमको सब पता है. वो मॉडर्न होगा, हम पुरानी बात कर रहे हैं. दिया फीमेल है. जैसे इनकी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी मेरी आवाज़ अच्छी है बोलो भाई. तो मैं बोलता मेरा इतना मैस्कुलिन आवाज़ है, मेरी आवाज़ क्यों होगा? मेरा आवाज़ अच्छा है, मेरी मर्जी है. हम मेरी आवाज़ किसी ने ठीक करके गया होगा कि आवाज़ फीमेल है. एक मेडिसिन के ऊपर हमने एक गाना गाया है जो गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ. पिक्चर वो इनके लिए गाया है हमने. जो साइलेंट किलर्स होते हैं हमारे लाइफ में, हमें पता नहीं चलता है अनलेस एंड अनटिल वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गो अहेड एंड टेस्ट इट. तो उसके लिरिक्स आप देखिए, आपने सुना होगा गाना. डेफिनेटली सलमान खान प्रीति जिंटा के ऊपर है, हमारा डुएट गाना है. बट वो मेडिसिन जो लोगों को जनहित में वो गाना हमने गाया था. कौन सा गाना? अरे देखो तो सही, सुनो पहले. देखिए साइलेंट किलर्स जो होता है, आप गौर करें जरा, आप बाद में उसका रिपीट करना. ये जनहित में है, लोगों को कॉन्शियस करने के लिए कि क्यों आपको यू हैव टू लव योरसेल्फ. इसमें भी कुछ झोल है, कुछ तो गड़बड़ है. नहीं कुछ नहीं, एक बता रहा हूँ. रग रग में इस तरह तू समाने लगी, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगी. कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ. रग रग में इस तरह तू समाने लगी, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगी. दिल मेरा ले गई, दिल मतलब हार्ट, दिल मेरा ले गई लूट के. दे साइलेंट किलर्स. चोरी चोरी यस, चुपके चुपके. पता भी नहीं चलता है कब आपका कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज हो गया है. ये जनहित में नहीं है. इनके लिए हिट गाना है, मेरे लिए ये जनहित है. यही तो फर्क है, राइट? आई थिंक यू कैन क्लैप फॉर अलका जी. ये उनके लिए हिट गाना है, मेरे लिए हिट और जनहित दोनों है. तो आप बताइए, अब ये गाना आपको गाना पड़ेगा. अभी जो मुखड़ा मैंने गाया प्लीज गाइए. रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगा. ले गई लूट के चोरी चोरी, चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके. ओ चोरी चोरी, चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके. आई नेवर थॉट कि ये आपने जो एंगल बना दिया है. नहीं बट साइलेंट किलर्स आप टेस्ट कराइए. नहीं तो चोरी चोरी चुपके चुपके कब डायबिटीज़ हो जाएगा, कब कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा. और दिल मेरा ले गए लूट के. हाँ तो ये आप ये तो कोविड का गाना लग रहा है. ये मेडिकल नहीं है, ये तो कोविड का गाना लग रहा है. मैंने कल डॉक्टर्स एसोसिएशन का एक दिल शो मेरा किया. ले गई. मैंने बोला आप लोग इतने प्रिविलेज्ड है कि राजेश खन्ना, एस.डी. बर्मन और किशोर कुमार तीनों ने आप लोगों के लिए गाना बनाया, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए गाना बनाया. एंड देन आई हैड संग कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ. हाँ हाँ छोड़ो ये ना सोचो, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा.
तो ये आप मेडिकल गाना नहीं है, डॉक्टर्स के लिए नहीं है। आप कहीं भी जाइए डॉक्टर के पास आप पूछते हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, सारे पूछेंगे। तो ये तो तीनों लोग मिलके डॉक्टर्स के लिए बनाया था। तो उस वक्त मैं छोटा था, अभी भी हूँ, लेकिन मैंने ही सोचा था कि ये जनहित के लिए है। तो माइंड को ऐसे धीरे धीरे आपको चेंज करना पड़ता है कि एक हिट गाना कैसे जनहित के लिए जारी हो सकती है। तो मैं इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अलका याग्निक जी का हिट गाना होने से पहले लता जी के गाने बहुत खूबसूरत गाते थे। मैंने कल्याण जी आनंद जी के साथ शुरुआत में जो इनको साधना सरगम को सुना है, शी वॉज वन लेडी हु सैंग लता मंगेशकर सॉन्ग्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली। तो पहले जब हमारे गाने जब नहीं होते तो आपको दूसरों के गाने गाना पड़ता है, बिकॉज बिफोर यू हिट दैट हिट स्पेस। तो आप अगर लता जी के जो आपके फेवरेट गाना है, हर गाना एक से हाँ, तो हर गाना तो मत गाइए ना, एक ठो गाना पूछिए, उसमें से एक ठो। हम जब मार्केट जाते हम सब आलू ले लेते क्या, एक ठो आलू, एक ठो आलू, एक ठो प्याज, एक ठो मुर्गी लेके घर आते। एक ठो गाइए, एक ठो गाइए ना, आप सिंगर है, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ। मैं ट्रबलिंग मी सी नहीं, गाना गाने के लिए कह रहा हूँ, तो फिर आप कैंसिल करिए प्रोग्राम। इनका टिकट विकेट आप ही नहीं दिया होगा ना, होटल स्टे। महंगा करेंगे बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में रहे ना रहे हम। ये गाना मेरा भी, रहे ना रहे हम, महका करेंगे बन के कली, बन के सबा, बागे बहार में रहे ना रहे हम, महका करेंगे बन के कली, बन के समा, बागे बहार में रहे ना रहे हम। ई रहा तो ई, डी रहा डी। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम ना मानो तो तुमको कसम, आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम। ये वन ऑफ द लास्ट सॉन्ग्स रिटन बाय आनंद बख्शी जी, सब डुएट है अपना। मेरी तरह ये स्केल रखो, चलो डी रखो। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना, कितना मजा है, कितना लला है, प्यार करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी सनम प्यार करके देखो ना, हमने चाहत का मुझ पे सनम इकरार करके देखो ना। ना 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 ना, राज का वो वाला हमने तुमको
इनकी आवाज़ सही में ख़राब है, आई कैन मेक आउट एज अ सिंगर. थोड़ी सी सोर थ्रोट है, तो सोर I have a थ्रोट sore throat, that's why तो उससे I'm, मुझे ये बोझ मैं आप पे ज़्यादा डाल रही हूँ. इन्हें डाल चुके हैं. तो ये बहुत सारे हमारे गाने हैं, लेकिन आई डोंट नो. और कौन सा गाना है? बहुत बहुत गाने हैं. क्या बताइए बताइए. हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम. ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी न सोचा कौन This हो song I don't तुम. remember. हमने तुम, मतलब you basically showing off that you have so many songs that you don't remember. हाँ, yeah. अच्छा, एक बहुत प्यारा गाना है हम लोग का जो गाया हम लोगों ने. खोया खोया चाँद. नहीं, टैगोर सॉन्ग. हमारो पुरानो जाचा তুমি তাই গো আমার পরানো যাচা. তুমি তোমার ছাড়া যে জগতে কিছু কিছু নাই, কিছু নাই গো আমার পরানো যাহা চায়. তুমি তাই গো আমার পরানো যাহা চায়. अगर मैं बात नहीं करूं तो ऐसे ही बोरिंग हो जाएगा, बिकॉज शी विल नॉट स्पीक. तो मुझे इतना बात करना अच्छा नहीं लगता. लेकिन आप अब लोग क्या बताइए, करें? मुझे मौका मिल रहा है बात करने नहीं, का? बिल्कुल मौका मिल रहा है. नहीं गा रही है, नहीं बात कर रही है, गा गाना भी रही मालूम हूँ, नहीं है, बात सब. भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा दोनों साथ तो नहीं बोल सकते ना. एक बोल रहा है तो दूसरे को चुप नहीं, रहना बट चाहिए. आप तो अपने कहानियाँ कुछ बताएंगे, या तो आपने जैसे मेरे पे प्लान. मैं चाहती हूँ ये लोग पूछें तो मैं बताऊं, क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ है कहने को. या बिल्कुल यू कैन. So we've spoken of Lata Mangeshwar. So Alka, will you like to share some? We'd like to hear something that the moments that you've shared with Lata ji. Oh my God, there are too many. There are too many, and I think I'm very very fortunate to have उनसे संपर्क रहा, उनसे बॉन्ड था, बातचीत होती थी, मिलना जुलना होता था. और in fact, for me, I mean, actually for no one, for everybody, she's not gone, she's still there. But I actually feel that someone like her can't die. Anybody else in the world can die, but not her. Because I always felt she was not a human being, she was divine. She was, how can divinity die? How can something that is not human, that is ethereal, how can they die? तो मुझे ऐसे ही लगता है. और उनसे बहुत बातचीत होती थी, एंड शी हैड सच अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर. चुपचाप कुछ बोल देती थी, और जो समझ जाए वो समझ जाए, मतलब. और फ़ोन पे हमेशा बात होती रहती थी. ऑन हर बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, शी टू ऑलवेज कॉल. एंड गणपति पूजा होती थी, एवरी ईयर आई टू गो. इट वॉज मैंडेटरी टू गो एंड अटेंड द पूजा. In fact, a very strange thing is that just 2 months before she passed away, उसके पहले काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई थी. तो I think she must be in some state of कोई a weak state, or when you she knew that I adored her genuinely, not just as a singer, but even otherwise. I was very fascinated by her. तो उनकी मैं वो पायल देखती थी, वो पायल जो पहनी रहती थी ना. एंड आई टू टेल दीदी ये पायल आपने, तो शी यूज्ड टू टेल मी कहाँ से लाई हूँ, मुझे पायल पहनने का बहुत शौक है. शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स. एंड वंस आई हैड गॉन टू हर हाउस एंड आई सेड दीदी कौन सा परफ्यूम लगाया, बहुत अच्छा. तो शी सेड ये है कार्टियर परफ्यूम. एंड शी टोल्ड हर मेड कि वो लेके आओ ज़रा मेरी अलमारी से कार्टियर. So she brought it and gave it to me. It was less than half was left. So ये है मेरा परफ्यूम, ये तुम रखो, ये मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट है. And that bottle I still have. It's like an antique piece for me, which I don't use, I don't touch. I've just kept it संभाल के. और
व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजती थी, व्हाट्सएप पे गाने, वी यूज्ड टू सेंड सॉन्ग्स टू ईच अदर. फिर कहती थी बहुत अच्छा गा रही हो, ऐसा करो, ये जो लाइन है ना इसको तुम थोड़ा सा सॉफ्ट करके गाओ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो सब बोलती थी. 2 महीना पहले जाने के पहले शी सेंट मी अ वॉइस नोट, एंड दैट वॉइस नोट इज़ वेरी प्रेशियस टू मी मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. वो मैं सुना नहीं सकती क्योंकि बहुत पर्सनल चीज़ है. उसमें द ओनली व्हाट शी सेड इन द वॉइस नोट वाज, अलका कैसी हो, बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं, तुम ठीक हो ना, अच्छी हो ना, काम कैसा चल रहा है, सुना है कोविड के बाद इंडस्ट्री में काम बहुत कम हो गया है, क्या कर सकते हैं, तो होता ही है, ऐसा हुआ है. तो तुम अच्छी हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम खुश रहना, तुमको ईश्वर दुनिया भर की खुशियाँ दे, ठीक रहना, तुम अच्छी रहना, बहुत बहुत प्यार. शी सेंट मी अ वॉइस नोट, एंड उसके कुछ दिन बाद आई हर्ड दैट शी वॉज hospitalized and in and out of hospital. And then I was out of town, I was in Pondicherry, and I heard she's passed away. I mean, it's so... और वो नोट, वो जो उनका वॉइस नोट है, मैं every day I listen to it. Anytime I feel low, I feel down, I feel anything, I just put on that. Because उसमें इतना प्यार था उनकी आवाज़ में, the way she spoke. So I have had the good fortune of connecting with her personally also. Besides, of course, हम लोग सब उनके पागल फैंस हैं और रहेंगे. मगर वो जो पर्सनल कनेक्शन जो हुआ था, वो मुझे मेरे दिल में है. It's got a, it's a very precious, it's very precious to me. अनमोल है. And there are lots of things I can talk about her, but maybe next time more. देखिए, अभी आपने इतनी लंबी बात की और एक एक्सपीरियंस बताया, तो आई थिंक इट डिजर्व्स अ क्लैप फॉर बोथ ऑफ अस. अब मैं भी ऐसा, मेरे साथ बिल क्लिंटन और ओबामा साहब की बहुत ऐसी बातें होती थी, बिल क्लिंटन और ओबामा के साथ, क्योंकि आपने जो बातें बोली है, ये सच है या गलत है, उसको इवेलुएट करने का कोई रास्ता तो है. You are only proving me right that you are a wacko. You are proving it more and more. देखिए, With every dialogue of yours, they are totally convinced now that you are a wacko. Let them be, what doesn't matter, but that still leaves me with I, me and myself. I am comfortable with it. तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सी विंस्टन चर्चिल नहीं, आपको मालूम भी नहीं होगा, मैं विंस्टन चर्चिल बोलूँ तो आप बिलीव कर जाएंगे. चार्ली चैपलिन ने सेड दैट जोक इज़ अ वेरी सीरियस थिंग. तो आपको बहुत सारे सीरियस थिंग भी आप ह्यूमर के साथ अगर डील करें, तो मैं आपको बोलता हूँ 80% प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाता है. पीपल हु वांट टू गेट द मैसेज, आई एम नॉट सेइंग दैट ये जो बात मैंने बोला कि ये सच है या गलत है, ये प्रूफ करने का कोई ये नहीं है. ठीक है, आपने बोला, हमने सुना, बट ये अलग बात है, ये अभी इवेलुएट कर नहीं सकते. क्या सच है कि गलत है? ये मतलब आपने बोला, हमने सुना, आपको हम बेनिफिट ऑफ द मतलब डाउट. कौन सी चीज? ये जो लता जी के बारे में अभी तो इवेलुएट कर Okay, नहीं now सकते. the third hit is going to come your way. अच्छा, वेट The third hit. अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ. जो भी इन्होंने बोला है वो सारा सच है. मैं गीता को, कोई गीता है क्या यहाँ पे? मैं गीता पे दूर से मैं हाथ, उनके नज़दीक जाके मैं कह सकता हूँ कि गीता पे हाथ रख के नहीं, मैं दूर से बोल सकता हूँ, इन्होंने जो भी कहा है सब सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है. अब भी इनके लिए जोरदार ताली बजाइए. और यू नो, आई डिड नॉट गेट मच ऑफ अ चांस टू मीट लता जी, बट यहाँ पे भी कह सकती है कि सच है या गलत है. सही में आशा जी कैन प्रॉब्ली से, बट एक मुहूर्त बना था, एक छोटा सा मोमेंट बना था. ऐसे तो अलग जगह पे मिलते थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक स्पेशल मोमेंट बना था जो इज़ वेरी प्रेशियस इन माई लाइफ. आई विश आई कुड टेक अ फोटोग्राफ. बट हम आशा दीदी के साथ, आशा भोसले जी के साथ बहुत सारे, मोर देन 100 फॉरेन टूर्स हमने किया है, मोर देन 400 शोज़ किया है, इंक्लूडिंग ऑस्कर जहाँ पे होता था, श्राइन वाशिंगटन डीसी में, लिंकन सेंटर, सब जगह में किया है. तो अभी भी मतलब वीडियो कॉल कभी कभी उनका गलती से भी लग जाती है. तो पुणे में रहती है, बेटी की तबीयत ख़राब थी, जो छोटा बेटा है नंदू, वो दुबई में थे, तो शी वॉज अलोन विथ हर मेड. तो वीडियो कॉल में कभी कभी मतलब ऑफिस में हूँ, अचानक फ़ोन करती है कि क्या रियाज़ कर रही हो, बताओ ज़रा, ये वाला गाना गा के सुनाओ, थोड़ा सा ये बताओ, ये क्या. तो
आई thoroughly enjoy it. मैं थोड़ी देर के लिए अपना पीछे चैम्बर में चला जाता हूँ. So that both the sisters that way are very different kind of personalities. That she'll agree. Very different personalities. Lata ji was very semi and Asha ji is very outgoing. मुँह थोड़ा सा बोल देते हैं जो उनको बोलना है. But ये affection जो है इन दोनों में ये बात थी. They also encourage new talents and all that. But एक मुहूर्त जो मोमेंट की बात कर रहा हूँ, एक बार शो के पहले मैं आशा दीदी के घर में गया था मतलब रिहर्सल करने के लिए. तो जब म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल था उसके पहले हम बैठे थे. अच्छा, तो बाकी गानों के बीच में आई टोल्ड यू अबाउट इट. बाकी गानों के बीच में मैं हारमोनियम में वो गाना गा रहा था. शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है. शोखियों में घोला, ये हारमोनियम में गा रहा था ज़मीन पे बैठ के. और दीदी आशा दीदी जो है बेड पे बैठी थी. इनको भी मालूम है वो घर के अंदर मैक्सी जिसको बोलते हैं एकदम लिटरली वैसे ही सारे उषा जी थोड़ा सा उस टाइप के कपड़े घर के अंदर ये करते थे. तो अचानक उस रूम के अंदर मैंने देखा कि छोटी सी कोई चल के आई. मैं ऐसे बैठ के गा रहा था. आई टर्न एंड आई सॉ इट इज़ लता जी. और बोले गाओ गाओ गाओ, अच्छा लग रहा है. देन शी सैट एट द कॉर्नर ऑफ द बेड एंड शी हर्ड द एंटायर सॉन्ग सिंगिंग. फिर आशा जी सेट कि ये मेरे साथ सब शोज़ में रहता है. इट वॉज बैक इन आई वुड से 2007 या 2008 की बात है. बट एक छोटी सी वो जो मुलाकात थी विथ म्यूज़िक, इट रिमेन्स अ वेरी प्रेशियस मोमेंट इन माई लाइफ. बाकी तो सोशली मिलना वो अलग चीज़ है. बट दैट वॉज रियली आई शेयर इट विद हर. आई थिंक हम लोग वी वर सो फॉर्चुनेट कि हम जिस दुनिया में हैं और जिस वक्त पर हैं, हमको लता जी जैसी एक कलाकार से हमारा पाला पड़ा. किशोर कुमार का ये पाला है एक्चुअली हॉल का नाम. तो एनीवेज सॉरी तो क्या तो किशोर कुमार से मैं कभी मिला नहीं. मैंने सपने में किशोर कुमार जी के साथ म्यूज़िक के बारे में डिस्कशन किया. नो नेवर. आई सॉ हिम इन मेनी शोज़ इन इंडोर स्टेडियम. बहुत सारे शोज़ बचपन में मैंने देखा, लेकिन आई नेवर गॉट टू मीट हिम. तो मैंने सपनों में जैसे मैंने कहा कि उनके साथ चेस खेला है, उनके सारे में गाने के बारे में बात किया है. ट्री के बीच में कहाँ वो पैसे छुपा के रखे हैं ये सब मुझे बता रहे हैं. सपनों में मैं कई बार ये सब देखा हूँ, लेकिन कभी रूबरू मैंने नहीं मिला. लेकिन ये जो है इन्होंने किशोर कुमार जी के साथ भी काफ़ी जो है इंटरेक्शन इनका रहा है. मैंने गाने भी रिकॉर्ड किए थे उनके साथ और बहुत शोज़ किए हैं उनके साथ. तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें. हम शोज़ के बारे में शोज़ के बारे में माय गॉड ही वाज इज द बैक हो ना. नॉट एज मच एज यू. ही इज मच मोर. वो तो सबने को पता ही है ना. गाते गाते यू टू लाई डाउन ऑन द स्टेज. दुनिया कहे मुझको पागल, मैं कहता हूँ दुनिया को पागल. ये उनका लाइन था. नहीं वो डायलॉग था ना उनका, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है. वो ही आपकी हालत है. एनीवे सो he was hilarious on stage and लेट जाते थे गाते गाते. Mike is like this, he's lying down on the stage and is throwing his legs in the air like that, and it was फिर भी उनका एक सुर हिलता नहीं था कहीं. He was so perfect at his सुर. And recording के वक्त तो he was constantly talking something or the other, हंसा रहे थे हंसाते. He used to tell me कि रिकॉर्डिंग के दौरान वो मैं बिस्किट खा रही होती थी तो बोलते थे तुम भी बिस्कुट खाती हो रिकॉर्डिंग के टाइम. आशा भी खाती है बिस्कुट और फिर बिस्कुट खा के मुर्गियाँ मारती है, फिर मुर्गियों में खुद फंस जाती है. ऐसी बात है. So I had to literally tell him, Radha, please हंसाइए मत. क्यों हंसते हंसते then you know when you're singing, if you keep laughing too much, it becomes a problem. And then और भी बोलते थे देखना अभी ये गाना है ना, अभी मैं देखना कैसे भाग जाऊंगा. वो महबूब स्टूडियो में पीछे वो सीढ़ियाँ होती थी ना. तो व्हेन यूज्ड टू गेट, अगर म्यूजिक डायरेक्टर बहुत पका रहा होता था, दादा इसको ऐसे गाइए, दादा इसको ऐसे गाइए, अभी देखना मैं
ही यूज्ड टू गो फ्रॉम द पीछे की सीढ़ियाँ से नीचे बैठ के गाड़ी में बैठकर होम. वो आते थे, दादा कहाँ हैं? सर पता नहीं. दादा पता लगा घर चले गए. सो ही वॉज अजीब ही ऊटपटांग चीज़ें करते थे, बट ही वॉज सच अ. आई रिमेंबर देयर वाज अ पार्टी एट हिज हाउस वंस, जो उन्होंने अपने अमित कुमार वन फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड उसकी पार्टी की थी घर में. वी आर ऑल गॉन टू हिज हाउस एंड पार्टी चल रही थी, खा रहे थे, पी रहे थे लोग. एंड ही एट शार्प 8 o'clock ही सेड, आप लोग करिए पार्टी, जो करना है करिए, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी सुबह रिकॉर्डिंग है, मेरी आवाज़ नहीं सोऊंगा तो आवाज़ मेरी ठीक नहीं रहेगी. गुड नाइट करके ही पुश्ड ऑफ एंड वी वर ऑल देयर इन हिज हाउस. He was a very unusual man, and of course, what a fantastic. I would say उनकी आवाज़ was romance personified. अगर कोई बोलता what is romance, that is the definition of romance. शोज़ किए उनके साथ, रिकॉर्डिंग्स भी की हैं, और एक बार रिकॉर्डिंग के बाद ही टोल्ड, मम्मी जाती थी हर जगह रिकॉर्डिंग में मेरे साथ. सो ही टोल्ड मी, मुझे बोलती, तुम्हारी गाड़ी है क्या? आई सेड हाँ दादा. ड्राइवर है? आई सेड नहीं, ड्राइवर नहीं, मम्मी चला के लाती हैं. मुझे घर छोड़ दोगे? आई सेड हाँ, मेरी गाड़ी ना वहाँ पर ख़राब हो गई है, वो गैराज लेके गया है, वो घर छोड़ दोगे ना? मम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऐसे नहीं, क्यों प्रॉब्लम क्यों होगी? सो वी हैड अ स्मॉल मारुति कार दैट टाइम, जो नई आई थी. तो मम्मी वॉज ड्राइविंग एंड ही फोर्स्ड मी टू सिट अहेड. ही सेड नहीं, तुम आगे बैठो. एंड ही सैट बिहाइंड, एंड दोनों चेयर्स पर हाथ रख के, मुंह आगे रख के, ही केप्ट टॉकिंग एंड केप्ट सिंगिंग, केप्ट टॉकिंग, केप्ट सिंगिंग. आई स्टिल फील दैट वाज इट्स नॉट रियल, वेरी अनरियल आई फील, बट दैट एक्चुअली हैपेंड. एंड कभी कभी मैं अकेले में बैठ के सोचती हूँ कि दैट ही रियली सैट इन माई कार एंड वी गेव हिम अ लिफ्ट, वी ड्रॉप्ड हिम होम, एंड ही हैड कम होम ऑल्सो वंस. एक बार घर पे भी आए थे हमारे. तो आई एम ब्लेस्ड. आई वुड जस्ट. कोई फोटो है? घर पे आए थे? हाँ, आपके घर पे आए थे, कोई फोटो है? फोटो नहीं लिया होगा ना? अच्छा, हाँ ठीक. हाँ, कैमरा फोन नहीं था ना, बट फोटो रहता था कोडैक का. बट ठीक है, दैट्स ओके, वी बिलीव यू. फोटो भी है. अच्छा है. है, समझे, फोटो है. अच्छा, इनका एक गाड़ी की बात करें तो मैं आपको एक एनेक्डोट बता दूं. इनका एक ड्राइवर है, शॉफर है, रादर ड्राइवर शब्द मुझे पसंद नहीं है, शॉफर है, जो आपके पास बैठते तो आपका दोस्त जैसा बन जाता है. तो बहुत सालों से ये है, और इतनी डांट खाई है आंटी से हर मोमेंट पे, हर सिग्नल पे. ब्रेक क्यों पहले दिया, ब्रेक क्यों आगे बाद में दिया, क्यों गाड़ी सामने है. ये उस वक्त भी डांट खाती थी आंटी से कंटिन्यूसली होल डे. और ये अलका जी जो अभी थोड़ी देर पहले सुचेता जी को बता रही थी कि मैं भी मम्मी जैसी हो रही हूँ, ये भी कंटिन्यूसली डांट खाती है. और मैं आपको सिर्फ मतलब वो उसका लाइफ ही जो है 80% डांट खाती. लेकिन आपको मालूम है कि भगवान कभी कभी कितना बड़ा जोक, हालांकि मैं एथियस्ट हूँ, बट कितना बड़ा जोक हो जाता है. उस आदमी का नाम सोचिए क्या है, परमानंद. उस आदमी का नाम है परमानंद. एंड मैं उसको बोला कि बेटा अगर खुश रहना चाहते हो तो सच्चाई को अपने दिल से लगाओ. सच्चाई को जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम खुश नहीं रह सकते हो. अपना नाम निरानंद कर दो. नहीं राजी हुआ, और ये मानेंगे कि वो परमानंद आज भी है, और आज भी उतनी ही डांट खाता है, लेकिन उसका नाम आज भी परमानंद है. ये अपने आप में ऊपर परमानेंट है. परमानंद जी का अगर आशीर्वाद ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है. तो मेरे जितना स्टाफ है वो सब बहुत जितने स्टाफ जितना स्टाफ है सब 25-30 साल पुराने हैं. हाँ, तो आप भी तो एंटीक चीज़ ही है, तो कौन सा पुरानी चीज़, तो इसमें कौन सी नई बात है. मेरे जो नाउ द थर्ड हिट विल कम राइट ऑन योर हेड नाउ. अच्छा देखिए, अब मैं इनको इतना टेंशन था कि इन्होंने अर्जुन मेरा मतलब जूनियर है, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ. शी वॉज नॉट श्योर कि क्या मैं बातचीत कर पाऊँगा. शी वॉज गेटिंग अ होस्ट. नो, दीदी वॉज सेइंग कि क्या बात करोगे तुम लोग, क्या बात करने की जहाँ तक बात है, डोंट वरी. बात करना तो आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आप बात करना बंद करो. क्यों किसको? एक सेकंड रुक जाइए, बिना बात के मुझे इंसल्ट मत करिए. हाँ, मेरा एक सेकंड, आप बताइए तो आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं? एंजॉय नहीं कर रहे हैं. अभी मैं अगला 5 मिनट बात नहीं करूँगा, मैं देखता हूँ अलका जी क्या करती है. चलिए, प्रॉमिस है. माई टाइम स्टार्ट्स नाउ 5:47. कुछ नहीं बोलूँगा. चलिए
आप करिए, 5 मिनट बात करिए। 5:47। आप मुझे यहाँ मुझे तंग करने के लिए बैठे हैं कुछ क्या? नहीं, आपने बोला ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए, क्वाइटनेस ऐसी चीज़ है ना जो चुन चुन के उसका ये देना पड़ता है, क्वाइट ट्रीटमेंट जो है। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। 5 मिनट हो गई। अलका जी, with your voice, with your आप कह रही हैं आपका गला खराब है, बट आई थिंक योर वॉइस इज समथिंग जो कभी खराब ही नहीं हो सकती। अब वो क्या होता है, गला खराब में भी गा तो लेते हैं, लेकिन मुझे मुझे क्या कहते हैं, खुद को अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज इट्स नॉट माई बेस्ट, सो आई। नहीं, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है आपका। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा मैं नियम तोड़ के बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें अन्नू मलिक जी ने जो आपको गाना सिखाया था, वो किस तरीके से गाया था, वो ज़रा सुनाइए। ये राह में उनसे कि हल्का हल्का गाओ गाओ, इसको आग लग जाएगा, आग 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 लग जाएगी। तो हिट गाना है। नहीं, ये इस गाने में नहीं बता सकती, दूसरे गाने बता सकती कैसे हूँ। बता? लेकिन आई डोंट नो व्हेदर आई शुड बी व्हाई टॉकिंग। नॉट, कोई नहीं करेगा इसमें। अन्नू जी का नकल करना व्हाट इज द बिग टेप करके भेज देगा तो फालतू नहीं, तो में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड बी एबल टू टेक जोक ऑन आवर। अनु मलिक एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर। बैलेंस मत करिए। नो डाउट, आई एम अ फैन ऑफ बैलेंस मत करिए आप। नहीं, उनका बैलेंस नहीं नकल कर रही करिए हूँ। ना। So he came to my house one day and he said, Alka, we have to rehearse this song. They don't know Anu, now how will they? अन्नू मलिक सब जानते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग नहीं जानते हैं? अच्छा, नहीं, मेरा मतलब है his ब्लैक एंड व्हाइट में जानते हैं। his personality they don't know ना। हाँ ना, आप उसलिए तो मैं बोल रहा हूँ करने के तो लिए। he came to my house and he said that ये गाना रिहर्सल करना है, चलो हारमोनियम निकाल कर। And my mom used to come and sit right in front over there. करो रिहर्सल करो। तो ही यूज्ड टू स्टार्ट शिफ्टिंग इन हिज प्लेस कि अब आंटी बैठी हैं। तो एनीवे, तो ही सेड दिस सॉन्ग इज वेरी मच, इज नॉट योर काइंड ऑफ सॉन्ग, इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग, बट यू सी तेरा बिल्कुल स्टाइल बदल जाएगा, तेरा कितना अप्रिशिएट होगा। ऐसे सिखा दीजिए गाना। ही सेड सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों ना बोले। मैंने बोला अन्नू, आई सैंग सेक्सी 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 मुझे लोग बोले। नहीं यार, क्या कर रही है तू, गाने का बर्बाद कर रही है। हाँ, सेक्सी 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 ऐसे। मैंने बोला अन्नू सुनो, ये गाना मैं आई विल नॉट सिंग दिस सॉन्ग बिकॉज वॉट यू वॉन्ट आई एम टू इनहिबिटेड टू डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग। क्या बात कर रही है, तो बहुत अच्छा गाएगी तू, बहुत। फिर मम्मी आई, ये क्या गाना है, ये अलका नहीं गाएगी ये गाना। उसके बाद आई टोल्ड हिम, अनु लिसन, एक काम करो तुम, ये आई एम टेलिंग यू करेक्ट, ये गाना जो है दिस विल सूट अलीशा, हर स्टाइल, बिकॉज शी इज गॉट दैट काइंड ऑफ अ क्रैक इन अ वॉइस एंड शी सिंग्स दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स वेरी वेल। नाराज हो गया एकदम गुस्से से, मैं कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं, धाड़ धूड़ दरवाज़ा बंद करके पुश्ड ऑफ। बट ही डिड गो टू अलीशा एंड ही मेड हिम सिंग एंड द सॉन्ग टर्न आउट सो वेल। सो मतलब अपने करियर में और अपने इन द पाथ ऑफ माई करियर आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वैकोज। या इनफैक्ट उस गाने में सेक्सी सेक्सी वर्ड जो है चेंज करके बाद में बेबी बेबी करना पड़ा, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था। बेबी 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 मुझे तो बहुत बात नहीं कंट्रोवर्सी हुआ, उसलिए उसको चेंज करना पड़ा। बहुत बात नहीं वो, बिफोर द फिल्म रिलीज्ड तो सेंसर ने रोक दिया था उसको। उस वक्त ये वर्ड उतना यूज नहीं होती थी, अब तो हाँ, बट यू नो तो बहुत कुछ हो रहा है। बट दैट टाइम इट गॉट स्टक बाय दिस थिंग। बट मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स वेरी इन लव विद हर, आई मीन लव विद हर वॉइस, सो दे केम टू टीचर्स, दे केम टू टीचर सॉन्ग्स एट होम। बट वहाँ पे आंटी एक तरफ और दूसरे साइड में बंटी हुआ करते थे।
तो उनको ज़्यादा कोई चांस उतना मिला नहीं, बट आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफिशियली, बट सिंस इट इज़ अनऑफिशियल प्रोग्राम आई विल नॉट Okay, से। enough. 1 घंटा पूरा नहीं हुआ जी? बस अभी वी हैव टू फिनिश इट। आप लोग थोड़ा सवाल कर लीजिए। हाँ, यस, वेरी गुड। Hi, my name is Diya, by the way. एज वेज पूछ लीजिए, उतना तो नहीं No, बताइएगा। and I'm from Asansol. ओके। So my question is to both of you guys. Tell us the story about which song you guys recorded that was like so difficult to record. Like, what's the story behind such a song which was really difficult to record? Yeah, I'll tell you, there are stories are behind very few songs. वैसे तो those days recording was like every day from morning to night, 3 songs, 4 songs, 5 songs, तो याद भी नहीं रहता है। कोई कोई गाने में कुछ ऐसी बात हुई जो कभी याद रह जाती है। But I think, what do you have to? Is there anything you remember, any particular story? And I'll tell you, every song is very difficult and every song is very easy if you understand the song. And for us playback singers, it's always been important that we are able to sing the nuances which the music director wants. हम अपने आप गाना गाएंगे अपनी तरह से तो वो नहीं चलता है. When you are singing for a composer, he wants you to sing in a particular manner. तो आपके गले में वो nuances होनी चाहिए. अगर नहीं होंगी तो आप you will not be able to reproduce it the way they want you to do it. And they are not happy till you sing the way they want you to sing it. So like Jatin Lalit and Anu Malik, Nadeem Shravan, सबकी अपनी कुछ हरकतें होती थी गाने में, typical type की. तो वो चाहते थे कि आप वैसे ही गाओ और जब तक आप वैसे नहीं गाते थे तो उनको लगता था कि नहीं यार, you're not singing it properly. So we had to kind of learn and unlearn. इसका गाना गाया तो एक particular nuances गाने में हमने गाए. अब वो nuances should not be stuck in your voice. You should be able to change it according to another music director's composition. So you know, it's learning, unlearning, learning, unlearning. The process used to go like that. So that's what I'm saying. Every song is as difficult as it is easy. It depends on how you tackle it and how much you understand the song and understand the style of the composer, what he wants you to do. अपने गाने अगर बना के गाओ तो अपने तरह से गा सकते हैं. See, I very seriously rue the fact, and I'll always, this is one dark area which is always reside in my mind, which makes me very sad at times also. I think that, you know, Shanuda, Abhijita, they're almost 16, 17 years older to me. I think they, even Alka ji and all that, they were born at a time when singers के लिए वो indispensability थी. जो शान भी कई बार कहता है as a friend कि हम लोगों को जो है ना बहुत कम उम्र में almost retire करवा दिया गया है. See, there's a very famous saying by Mark Twain that experience is wasted in the youth. Youth is wasted in the young. Youth is wasted in the young. यानी कि आज के तारीख में जो experience आपने gather किया है, आप सोचिए इस वक्त अगर यूथ आपके पास होता तो आप कितना अचीव कर लेते. तो आई थिंक दैट सिंगर्स आर एट देयर बेस्ट व्हेन दे क्रॉस 40. बट जैसे मैंने हम तुम गाया 2005 में और 2005 में आई थिंक, और इंडस्ट्री में आपको गानों से ही गाना मिलता है. लेकिन उसके ठीक बाद हिमेश रेशम में आ गए और उनका वो झलक दिखला जा, वो आशिकी और ये सब चालू हो गया और टीवी में प्रोग्राम्स होने लगे बाथरूम सिंगर, मतलब रियलिटी शोज होने लगे जिसका नाम है बाथरूम सिंगर. यानी कि जो सिंगिंग नहीं है, ऐसा भी बचपन में हमारा हुआ होगा कि जब हारमोनियम लेके कोई अजीब गाना शुरू करे तो हम हंसी रोकने की कोशिश करते थे. आज ये कहना कि हमने तो गाना सीखा नहीं है, जो कह रहे थे कि नुएंसेस होना बहुत ज़रूरी है, वो एक फैशन हो गया. मैंने तो गाना सीखा नहीं है, कभी सीखा नहीं, मतलब दिस ऑलवेज अ अ फोर्सफुल वे ऑफ प्रूविंग दैट यू आर बॉर्न सो टैलेंटेड कि आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो हम सब का करियर जो है वो एक जगह पे जाके रुक गई. जो एक गोल्डन पीरियड 90s का 2000 में जो लोग ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते थे सुबह से शाम, और रिकॉर्डिंग में क्या है कि पहले से रिहर्सल होता है, ऐसा नहीं है. आप स्टूडियो में पहुंचने के बाद ही गाना सिखाया जाता है. हाँ, तो उस वक्त स्टूडियो में पहुंच के गाना लिखते थे, सीखते थे और उसी वक्त रेंडर करना पड़ता था. You had to be very sharp, pick up the song immediately. पिकअपिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट. And mind you, technical help was not that much those कुछ days. भी नहीं था. कहाँ ये मेलोडाइन ये सब थोड़ी था. नहीं, we had to जो गाया वो आएगा. वो गाया. आप मैक्सिमम एक टेक 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं. लाइव रिकॉर्डिंग. हाँ, लाइव रिकॉर्डिंग में अभी तो एक शब्द और उसको आप जो है आप कंप्यूटर में उसको ड्रॉ कर सकते हैं. आप उसे जैसे लोग बोले गानटा देखे सुने गए हो, तो अभी उस वक्त सिर्फ सुन के गाते थे.
अभी देखे सुने ही गा जाए, बिकॉज यू सी व्हेनेवर समवन इज रिकॉर्डिंग यू विल सी द फ्रीक्वेंसीज एंड द वेव राइट इन फ्रंट. उसमें आपको सा लगाना है, किसी ने फ्लैट गाया तो आप 440 मारिए तो 440 हर्ट्ज इज सा. They won't understand 440. नहीं, मैं बोल रहा हूँ 440 हर्ट्ज इज सा. आप तो रेडियो में तो ट्यून करती फाइन है, ट्यूनिंग होती है ना. फाइन ट्यूनिंग. तो जैसे आपने बटन दबाया, कोई अगर बेसुरा गाया तुरंत उसका वो शब्द वहीं पे चला जाएगा. शोखियों में गोला जाए, किसी ने गोला जाए गाए, तो जैसे ही आपने गोला जाए को पकड़ के उतना जगह को आप उठा देंगे तो सुर में हो जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा दुख जो है, बहुत बड़ा दुख जो है, ये मेरी ज़िंदगी में रहेगा. बिकॉज हम तुम के बाद पूरा वो माहौल उस टाइम पे कितने अच्छे अच्छे गाने रोमांटिक गाया, सब डूब गया. बिकॉज But honestly, Babul is extremely talented singer, excellent voice. In fact, I was जब गाना शुरू किया था इसने, तब I was really I really thought he's going to go places. But I just feel that he was the right person who came at the wrong time. Is that right? एब्सोल्युटली. आई थिंक दैट वो ज़माना चला गया है, इसलिए बहुत लोग गाते हैं. इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग अ न्यू वॉइस फॉर अ सॉन्ग. लकीली हम लोगों ने कम से कम हम लोगों का एक मतलब व्हाट शुड आई से, बहुत सारे हैं तो आप लोग पहचानते हैं, आपके नाम से भी करते हैं. कई बार आजकल सिंगर्स को अपना ड्यू मिलता ही नहीं है. एक गाना कोई फिल्म में गाया और वो गाना अगर अच्छा गाया, अगर उसको उसके लिए एक्कॉर्ड्स मिले, लोगों को पसंद आया, तो दे शुड बी रिवॉर्डेड बाय अ नेक्स्ट सॉन्ग इन अ नेक्स्ट फिल्म. आजकल वो होता ही नहीं. आप देखिए कितने सिंगर्स हैं, एक गाना गाया उसके बाद उनका नाम ही नहीं, नामो निशान नहीं रहता है. फिर अगले गाने में म्यूजिक डायरेक्टर मूव्स टू समवन There are एल्स. too many singers now because क्या हो गया है, because of technical help, a कोई भी singer गा who is सकता not a good singer also उसको ट्यून व्यून करके ठीक कर लेते हैं. But then that sustenance is not there. Sustain नहीं कर पाते because a lot of it is technical help that makes them sound good. जैसे एक टाइम पे स्पाइस गर्ल्स करके इफ़ यू वांट टू बी माय लवर वो आया था, उसके जो प्रोड्यूसर थे कई बार बोला कि इसमें से जेरी हेलावेल वाज वन ऑफ सिंगर जो बाद में सोलो करियर भी बनाई थी. अपार्ट फ्रॉम दैट गर्ल एंड मे बी स्कैरी बी अ लिटिल बिट, बाकी सब बहुत नॉविस सिंगर्स थे. बट दैट वाज द टाइम व्हेन स्टूडियो प्रोडक्शन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत स्टूडियो प्रोडक्शन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप जो, उसीलिए आज बहुत सारे सिंगर्स को आप देखेंगे मंच पे वो लाइव नहीं गाते, लिप सिंग करते हैं. क्योंकि जो उन्होंने स्टूडियो में गाया है उसको फाइन ट्यून करके, पॉलिश करके जब रिलीज़ कर दिया गया है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस दैट ऑन स्टेज. आप उनको अचानक कोई रिक्वेस्ट करिए वो नहीं गा पाएंगे. तो ये बात है. आई थिंक दैट आप लोग लास्ट में 3 सवाल करिए एंड आई थिंक वी शुड एंड इट हियर बिकॉज one last question. One last question. Okay, what are your thoughts on nepotism in the music industry? Nepotism is the word now. आपका बेटा, अगर आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो अच्छे से आप कर रहे हैं, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्यों आपके बेटे या बेटी को उस चेयर में बैठने का हक क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन ये है कि क्या उस चेयर में बैठने के बाद उनमें वो टैलेंट है कि वो दुनिया में अपना नाम कर सके? तो ये नेपोटिज्म वगैरह, दीज आर ऑल एलिगेशंस बाय वीक पीपल. बिकॉज हाँ नेपोटिज्म होता है, बट ऑब्वियसली होगा. करण जौहर बोलता है कि हम ये आपका क्या बोलूँ, रणबीर कपूर और ये आलिया भट्ट, हाँ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जो बेटी हुई है, तो ऑलरेडी शी हैज सेड आई लॉन्च हिम. तो क्या लॉन्चर क्या करेंगे आप? आलिया और रणवीर की बेटी है तो हो सकता है विरासत में उनको वो क्वालिटीज़ मिली हो. जैसे सारे बड़े लोगों के बच्चे जो है वो तो फेमस नहीं हुए. आलिया भट्ट वॉज वेरी टैलेंटेड, शी मेड इट. करीना कपूर वॉज वेरी टैलेंटेड, शी मेड इट. ऋतिक रोशन वॉज वेरी टैलेंटेड, ही मेड इट. आई कैन गिव यू 10 names जिनको मौके मिले हैं, लेकिन वो दे couldn't make it, they didn't make it. जिनके फ्रेंड्स फिल्म मेकर्स हैं और जिनके पास पावर है, they can keep launching because वो मेरा फ्रेंड है, उसके बच्चे को लॉन्च. बट अल्टीमेटली there are lots of children, मतलब star kids who have not made it because they don't have the talent to in sustain. it. खाली आप किसी के बच्चे हैं उससे थे आपको doesn't mean that you are going to make it in life. That way I feel Abhishek Bachchan should have been the topmost actor. He's very good, he's extremely good, but He's very good, he's a very talented boy, but यही है कि उसका maybe luck and other things. नहीं, फादर अमिताभ बच्चन है, वो वेट ही बहुत. आप तेंदुलकर को देख लीजिए. Father is Amitabh Bachchan, mother is Jaya Bachchan, हाँ, wife is गावस्कर को Aishwarya देख Rai. बताओ अभी मतलब तो it's just, and I sorry I'm interrupting. One thing I just wanted to
से इज कि कोई भी किसी का बच्चा है, डॉक्टर हो चाहे आप एक्ट्रेस हो चाहे आप सिंगर हो, यू शुड नेवर पुश योर चाइल्ड इनटू द सेम प्रोफेशन until the child herself or himself wants to do it and has a passion for it and has a talent, has good enough talent for it. आप मुझे हमेशा पूछते थे आपकी बेटी है, हाँ वो गाती है ना, अच्छा नहीं क्यों ज़रूरी है कि वो गाए, नहीं आपकी बेटी, अच्छा नहीं उसको नहीं गाना है, वो गाती है, उसकी आवाज़ है अच्छी, बट शी डजंट वांट टू बी अ सिंगर एंड शी वांट्स टू डू समथिंग एल्स. सो जो वो करना चाहती है, जिस चीज़ का उसको पैशन है, one always does well in what one feels I can do and I want to do. मैं उसको ढकेल सकती थी कि चलो चलो म्यूजिक करो. She could have pursued it, but she would never be happy. And she finds it like one कहता है ये साशा से कहती है कि ये क्या सर्कस लगा हुआ है सिंगर्स का, क्या करते हैं ये लोग सब, what are these whole lot of, so let them do what they want, let them go after their dreams, because only then will they do well. एक वोट ऑफ थैंक्स देना चाह रहा हूँ, वोट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ. बहुत मज़ा आया जो मैं ग्रिल्ड हुआ और अलका जी को रोस्ट करने का भी मौका मुझे मिला. सो इट वाज क्वाइट अ नाइस इवनिंग. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. सुचेता जी आप बहुत टेंशन में थे एंड आई होप दैट एट द एंड ऑफ इट यू आर हैप्पी. वी हैड सम लाइट हार्टेड मोमेंट्स एट द सेम टाइम. इफ़ यू थिंक I think that a lot of experiences, they look funny on the face of it, but it has been the story of your life, how you see it, how you have experienced it, how you want to see go ahead, what are the dreams you have. A very, very famous saying by Gautam Buddha, mind is everything. You become what you think you can become, and if you really want something, the universe conspires in your favor. अगर आप देखें, ये तो spiritual बातें हैं. अगर आप dog eat dog world में देखें तो वहाँ पे भी जो बड़े कंपटीटर्स हैं नाइकी और एडिडास, वो भी ये कहते हैं कि इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, जस्ट डू इट. एडिडास इज़ इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, नाइकी इज़ जस्ट डू इट. तो आई थिंक अगर न्यू कमर्स जो है उनको ये कहूँगा कि इफ़ यू थिंक कि आपका लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है टू सी वेदर दीज वाइज सेइंग्स, वाइज क्रैक्स आर ट्रू और नॉट, आई थिंक लाइफ बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट ट्राई एंड सी कि आप बुद्धा जी ने ये ठीक बोला था, माइंड इज़ एवरीथिंग, यू can become what you think you can become. क्या ये सच है कि if you really want something, the world conspires in your favor? क्या ये सच है कि just do it, impossible is nothing? If you just chase that, I think you can become a Alka Yagnik in your life and then keep on singing and make people happy. Thank you so much once again. And before you thank, I'd like to say a sincere, heartfelt thanks to Babul again for being here today, and thank you Gigi, thank you LSG. And thanks for being here with us, all of you, this evening. कुछ गीत लबों को भा जाते हैं, कुछ साज मन को छू जाते हैं, कुछ राग रूह को सुकून देते हैं, कुछ आवाज़ें दिल में बस जाती हैं. Two of our most versatile singers, Shri Babul Supriyo and Alka Yagnik, have filled our lives with their melodies and mesmerizing voices for decades. On behalf of the Ladies Study Group, I'm pleased to extend a heartfelt thanks to Shri Babul Supriyo and Alka Yagnik for this beautiful evening. Thank you so much for sharing your stories and experiences with us. Congratulations for all your hit, and we wish you luck for your Jan hit in life. We would also like to take this opportunity to announce the winners of the Photo Fest contest held during the Durga Puja, where our members were invited to capture the vibrant celebration of Puja through the camera lens. The photos were judged by Sushant Pal, our celebrated Durga Puja artist. I would request Ms. Alka Yagnik and Shri Babul Supriyo to give the prizes to the winners. Our second runner-up, Mrs. Alka Jalan. Our first runner-up, Anjana Dalmia. Anjana Dalmia. And the winner is Mrs. Gopa Ray,
May I request Chandrika Banerjee to please accept the trophy on her behalf. Heartiest congratulations to all the winners, and thanks to the jury and all the participants. I would now like to invite on stage Mrs. Madhu Navetia, our governing body member, to give a token of our appreciation to our guests. Thank you to our friends from T2 Telegraph and Sunmark for their continuous coverage. We appreciate and thank ITC Sonar team for their hospitality and arrangements. Thank you to all our guests and members for joining us today. Thank you. Have a great evening. Please join us for tea.